मी भारताचा सरन्यायाधीश झालो. कित्येक वेळा काम करताना असं होतं बघा कोर्टात की ह्याचा पर्याय काय आहे, ह्याचा सोल्युशन काय आहे हे सुचत नाही आपल्याला. जेव्हा मी अयोध्येचं काम माझ्या पुढे आलं होतं, म्हणजे शेकडो वर्ष ज्याला कोणी सोल्युशन मानलं नाही ते काम आमच्या पुढे आलं होतं. आणि त्यावेळेला एक असं झालं ते काम चालूच असताना की ह्याच्यात मार्ग कसा शोधायचा, आम्हाला कोणालाही माहिती नव्हतं ह्याच्यात मार्ग कसा शोधता येईल. त्यावेळेला मी आपल्या दररोजच्या दैनंदिन जीवनात माझी पूजा करतो तेव्हा मी देवांच्या पुढे भगवंतांच्या पुढे मी बसतो तिथे आणि मी त्यांना सांगितलं ह्याच्यात मार्ग तुम्हीच शोधून द्या. Do we not in our greatest hour of need seek divine guidance? Do we not pray to God to reveal the right path to us? And if we do, does it make us unprofessional? Does it mean that our astha has blinded us? You just heard the Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, declaring that in hours of conflict and dispute, he too looks towards God for guidance. Is it wrong for a man of law to have astha? CJI Chandrachud, who has been hailed in the past for his fairness by the opposition, has now been slammed for daring to speak about his astha. Remember when the Prime Minister performed Ganesh Puja at the CJI's residence, the Vipaksh pounced on him saying that they have their doubts if the opposition will get justice in court. But this is not the only time that they doubted justice. After the Ram Mandir verdict, Asduddin Owaisi exclaimed that Supreme Court is indeed supreme but not infallible. When former CJI Ranjan Gogoi took oath as a Rajya Sabha MP, Congress's Anand Sharma said controversial orders by him raise questions about quid pro quo. Today, they not just question the Chief Justice of India for seeking divine guidance, divine intervention, but accuse him of allowing his fate to dictate his decision in cases. In fact, Samajwadi Party MP Ram Gopal Yadav even used a vile abuse against him. When he was later cornered, he made a U-turn, calling the CJI a Mahan Admi. Watch how the Vipaksh closed ranks to cast aspersion on the Chief Justice of India. CJI चंद्रचूड़ ने, अभी आपने को रविवार को जानकारी होगी कि उन्होंने एक बयान दिया है जब बाबरी मस्जिद के निर्णय चल रहा था, उसको लेकर चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आस्था दिखा रहे थे और भगवान से प्रार्थना किए थे, जिसके बाद ये निर्णय ले पाए. कैसे सोच देखते हैं इसको? कोई कमेंट नहीं करा, ये छोड़ो क्या होता है, तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं, तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? चंद्रचूड़ का मैं कैसे बोल सकता हूँ? इज ए नाइस चीफ जस्टिस. किसी और बात से जुड़ा हुआ कोई कर दिया होगा कोई, हम कभी नहीं कह सकते. आई कैन नेवर से इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीजेआई. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर वो बैठे हुए हैं और इस तरह की बात करना मेरे हिसाब से सही नहीं है. अब देश आस्था की बुनियाद पर चलेगा या संविधान से चलेगा? अब आस्था की बुनियाद ही अगर है तो फिर तो हमारी आस्था का क्या? What about the law? Law goes on the basis of facts, evidences. But he's giving a preference to faith. CJI is a deceptive and hypocrite. Well, today the opposition is critical of CJI Chandrachud, but have they always doubted his decisions? Let's remind you when the Vipaksh hailed his jurisprudence. Last month, in fact, when a CJI-led bench upheld Section 6A of Citizenship Act, the Congress hailed it as victory of truth and justice. Then in February 2024, when Chandrachud-led bench quashed electoral bonds, remember how the Congress president, Mallikarjun Kharge, said, "We welcome the decision of the Supreme Court, which has struck down this black money conversion scheme of the Modi government." In May 2023, when CJI-led bench upheld the power of Delhi government in transfer of officials, the opposition hailed victory for democracy. So they hailed him then, but he is blinded by his astha now. Why drag him into political crossfire? And that brings us to our legitimate question. And the legitimate question in News Hour at 9 is, why singe Sanatan with Rajneeti? You're watching the News Hour at 9. Debate number 1 on Times Now. Super Prime Time. Let's open this up and go across to our guests. We're joined by Shehzad Poonawalla, national spokesperson of the BJP. We have Harshvardhan Tripathi, senior journalist.
We are joined by Smita Prakash, editor ANI, Sanjay Jha, author. We also have Vivek Silas, national spokesperson of the Samajwadi Party, and Kishore Tiwari, spokesperson of the Shiv Sena UBT. Good evening to all of you. Let me begin with you, Sanjay Jha. Sanjay Jha, Udit Raj says that, law is all about evidence. It is based on facts and evidence. Does the CGI not know that? Does he not know that the law book is the most important thing, as is being suggested by Mr. Imran Pratapgarhi? And why is the integrity of the CGI is being questioned all of a sudden? Is it because of the Ganesh Puja? Is it because in his native village he said that he often seeks divine guidance? Is it all because of that? Swati, good evening. I came on your program. Your guest relations coordinator assured me that I'll not be interrupted during the program. So I do hope we'll not have an acrimonious conversation. Let me keep my point very short. Everyone has a right to agree or disagree with the verdict of the Supreme Court. I mean, that is a fundamental right. The opposition has agreed with some opinions of the Supreme Court, has disagreed with some, and that's in the spirit of democracy. It's not a contempt of court. I would like to make my personal position very clear, though. I have personally felt that Mr. Chandrachud has made certain judgments that will be appreciated and echoed for a long time. Some of them personally I have not agreed with. Having said that, I do believe that when he said, and I just heard his statement today, where he said that he looked upon God before he took the big judgment on the Ayodhya issue, I can understand why, that very epochal, historic moment is a tough one for any justice to go through, because there is a lot of sentiment involved, not just of the majority, but the minority community. And when you're commenting on religious faith, it's an extremely hypersensitive matter. Now, the bottom line, and I will make this point, Swati, I won't take very long, I promise you, that since 2014, when Mr. Modi became Prime Minister and the BJP came into power, India has been a very polarized polity. It has been a fractured country divided on the lines of religious issues. And that is the reason why Mr. Chandrachud's statement, which in my opinion is an innocuous statement, which he has got every right to make. I think, for any, and it can belong to any faith, any God-fearing person who says, I looked upon God before I took the call, it is not fair to assume that therefore his verdict in the Ram Ayodhya case or in any other case was politically biased. So I would say that we are making much hullabaloo about nothing, making a mountain of a molehill. Mr. Chandrachud has been a dignified person. I believe a lot of people are very unhappy with him, and I've also been critical, by the way, of many of the things that he's commented on. I understand when you said that people can agree or disagree, but is it fair to call him deceptive? Is it fair to say that he's a hypocrite? That's exactly what I was making a point, Swati. I believe Mr. Chandrachud made a statement saying that he looked at some kind of a divine intervention before taking a call on any of these verdicts. I think he was speaking as an individual, and I think religion is a very personal faith. So I don't approve of any criticism of Mr. Chandrachud's expression of his personal faith and belief in God. And anyone who assumes that because he said that, and because he happens to be a Hindu, which so am I, and because he said that his verdict was colored by it, I think that's extremely unfair. And it's not just about him being a Hindu. It's not just about him being a Hindu. We have Mr. Kishore Tiwari on the broadcast as well. Kishore Tiwari ji, Anand Dubey के हिसाब से महाराष्ट्र में जो हो रहा था वो CGI की आंखों के सामने हो रहा था, और आनंद दुबे कह रहे हैं कि उस वक्त भगवान से क्यों नहीं पूछा, शायद किसी और से पूछ रहे थे. इज इट फेयर टू कास्ट सच एस्पर्शन ऑन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ये कहना कि वो किसी और से ऑर्डर ले रहे थे इन केस ऑफ महाराष्ट्र? देखिए, मैं धनंजय चंद्रचूड़ की बहुत आस्था रखता हूं और उनका आदर भी करता हूं, लेकिन महाराष्ट्र के वर्डिक्ट पे उन्होंने कहा था ना कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आ गई, तो उद्धव जी ने अगर रिजाइन नहीं किया होता तो मैं रिस्टोर कर देता. अब मुझे क्या लगा कि वो पिछली तारीख पर वो डिसीजन दे देगी, लेकिन फिर मुझे चांस है ना बोलने का कि मोदी जी वो टोपी पहन के आरती करने गए तो कान में तो नहीं बोल दिया उनकी कि जरा महाराष्ट्र देख लेना. अच्छा, तो एक तो मोदी जी का आरती को जाना भी नागवार गुजरा था मुझे. हाँ. दूसरा, महाराष्ट्र का वर्डिक्ट कब आया था? गणेश पूजा कब हुई थी? अरे गणेश पूजा के 4 दिन बाद में डेट थी.
अभी तो अच्छा। डिसीजन ही नहीं दिया, आप तो रिटायर होने को जा रहे हैं। अच्छा, नहीं तो आप कह रहे हैं कि गणेश पूजा में जाके मोदी जी ने उनको बोला, और कान वैसे में मोदी जी बोला नहीं है। बोल सकते थे उनको, ये गणेश पूजा का ही बहाना बना के मोदी जी उनके घर गए बोलने। अरे क्या मालूम यार, अभी ये मोदी जी चले गए थे तो मैंने को लोगों ने बोला बिगर बुलाए गए थे, लेकिन ठीक है गए। अब किशोर वो- तिवारी जी, तो- इतना इररिस्पॉन्सिबली कि क्या मालूम यार, मतलब हम सीजीआई के बारे में बात कर रहे हैं सर। अरे ये किस तरह की CGI थियोरीज है। हैं? ये किस एक तरह की मिनट में थियोरीज हैं? अरे भाई मैं चौथी एक बात बोल रहा हूं, सीजीआई ने अपनी पद की गरिमा रखते हुए, हाँ जब वो सीजीआई है, अभी रिटायर नहीं हुए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या बोल दिया? ये समझना चाहिए। ऐसा क्या बोल दिया? देखो, अरे भाई मैं भगवान से वो क्या लेना डिसीजन ये पूछता हूं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको वो क्या इग्नोर करते हैं? एक मिनट, मुझे तो समझ में नहीं आया। एक मिनट, मुझे एक तो मिनट। समझ में उन्होंने नहीं कब आया। कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर कर रहा हूं? कब कहा कि मैं अरे- कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर कर रहा हूं? अरे भाई वो चीज ही वैसी बोले उन्होंने। ऐसा क्या बोल भगवान दिया को किशोर पूछ के- तिवारी? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम आस्किंग यू। आपको कभी अपने पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में कभी ऐसी कठिनाई नहीं आई जब आपने भगवान के सामने सरेंडर किया हो या कहा हो कि रास्ता दिखाइए? इसका मतलब क्या भगवान ने आके उनके कान में कह दिया कि ऐसा ऐसा वर्डिंग देना? अरे भाई ये बात वो रिटायर होने के बाद भी बोल सकते थे, मैं अभी बोल रहा हूं। तो ऐसा कहीं लिखा है, ऐसा कहीं अरे लिखा भाई, है संविधान अरे में भाई। कि वो सीजेआई हैं, तो वो अपने रिलीजियस बिलीफ के बारे में नहीं बोल सकते, कि वो ये नहीं बोल सकते कि उनको भगवान में आस्था है, कि वो ये नहीं बोल सकते कि मैं रोज अपनी दिनचर्या के हिसाब से पूजा करता हूं? सीजेआई रहते अरे ऐसी भाई- बात नहीं कर सकते, ऐसा कहीं लिखा है क्या? अरे स्वाति पूजा करे, भगवान में आस्था रखे, लेकिन हमको न्याय दे देना था, इसलिए अरे- हमने बोला हमको तो न्याय दे देना था। अरे बाबा जी हमको न्याय दे देते तो अच्छा रहता। किशोर अब तिवारी मैं जी, अभी बता रहा हूं, कितना मैं बता कन्वीनियंट रहा है, हूं। मतलब बहुत कन्वीनियंट है ये तो। अभी हमने जो एग्जांपल साइट किए कि अभी कुछ दिन पहले 6A को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो आपने तारीफ की, वाहवाही की। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के जब उनके बेंच ने फैसला दिया तब आपने वाहवाही की। मतलब आप ये क्लियर कह रहे हैं कि भाई कन्वीनियंस का मामला है, हमें सूट करता है तो हम जय जयकार करेंगे, और हमें नहीं सूट करता है तो फिर हम इस तरह के आरोप लगाएंगे। शहजाद पूनावाला। अरे मैं राजनीति में हूं तो मैं क्या नहीं, पर करूंगा? सीजीआई राजनीति में नहीं है ना किशोर तिवारी जी। आप अरे उनको ये- राजनीति में, उनके रिलीजन को राजनीति में क्यों घसीट रहे हैं? शहजाद जी पूनावाला, मैं बोल रहा हूं, मुझे लगता है शहजाद कि- पूनावाला, अच्छा ठीक है। अब जो हमारे बाकी के पैनलिस्ट हैं, बीजेपी के वर्कर बन गए अब। किसके या- वर्कर? या वो बीजेपी के वर्कर बन अच्छा, गए वो अब। बीजेपी के वर्कर भी बन गए। इलेक्टोरल हाँ, बॉन्ड्स के धनंजय फैसले के चंद्र टाइम पे चूड़- आपने क्या कहा था? इलेक्टोरल बॉन्ड्स के टाइम पर वो किसके वर्कर थे? अरे भाई इतना दिल्ली में अगर दिल्ली में खुला दिल्ली में भ्रष्टाचार है, अधिकारों की बात पर जब फैसला हुआ तो किसके वर्कर थे? वो चुप भी तो रहे, बाद में चुप भी तो रहे। मतलब अरे आज भाई- सारी हदों को आप पार कर दीजिए। जो भी मौका मिले आरोप लगाने का आप लगा देंगे बिना किसी सर पैर के। अब अपने अरे बाकी हम- पैनलिस्ट को बोलने दीजिए जरा। शहजाद पूनावाला, लेट अरे अदर्स स्पीक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेट गवर्नमेंट अदर्स को स्पीक। रिस्टोर कर लेते तो नहीं बोलता। शहजाद पूनावाला, मुझे भी आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने बोला है कि जो बार बार कंप्लेन करते हैं कि उनका इंटरप्शन होता है, वो आपके बोलने में इंटरप्ट नहीं करेंगे और वो मुझे कॉफ़ी भी पिलाएंगे। तो दोनों बातें याद रखना। अब मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। वाह, मतलब कि संविधानिक पदों का अपमान, यही इंडिया अलायंस की पहचान। एक तो सी वर्ड बोलता है, एक डिसेप्टिव हिपोक्रेट बोलता है, एक बीजेपी वर्कर बोलता है। अब मैं कांग्रेस के जो मान्यवर सस्पेंडेड प्रवक्ता है उनसे पूछना चाहता हूं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है कि नहीं है। इंडिया अलायंस के नेता बताए, इंडिया अलायंस के दूसरे नेता भी सामने मेरे बैठे हैं, ये कैटेगोरिकली बताए, अन्यथा संविधान की रक्षा का इनका मेन एजेंडा है। तो संविधान की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी उद्धव सेना से रिश्ता तोड़े, कांग्रेस पार्टी उद्धव सेना से रिश्ता तोड़े। दूसरी बात, ये इनका रोज का बन चुका है। बताइए, ये 125 गालियां प्रधानमंत्री पद को दी, फिर उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा, इवल माइंडसेट कहा। इसी उदित राज ने मूक बधिर कहा था कोविंद जी को जब वो राष्ट्रपति थे। इसी कांग्रेस के नेता ने कहा था मैं जबान काट दूंगा जज की। ये जजेस बिके हुए हैं, अटैकिंग ईसीआई एंड ईवीएम्स, दे हैव डन दिस रिसेंटली आल्सो। सो दे कीप परिवार तंत्र अबव लोकतंत्र। दिस इज वेरी ऑब्वियस पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी किशोर जी ने बड़ा डिस्क्लोजर किया। गणेश पूजा में किसी ने उनके कान में बोला वर्डिक्ट के बारे में। देखिए, सीजीआई तो इफ्तार पार्टी में 2009 में गए, सीजीआई 2015 में दरगाह में गए। दरगाह और इफ्तार पार्टी में कॉन्स्पिरेसी
कॉन्स्पिरेसी नहीं होती, पर महाराष्ट्र की अस्मिता, भारत की अस्मिता से जुड़े हुए गणेश पूजा में इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी होती है। मतलब कि गणेश पूजा का कितना बड़ा अपमान इंडिया अलायंस और शिवसेना कर रही है। सोचिए, गणेश जी को उन्होंने लॉकअप में भी डाल दिया था और गणेश आरती का अपमान भी किया जा रहा है। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, आखिरी बात है कि अभी पोलराइजिंग की भी बात संजय झा ने की। संजय झा जी, राम गोपाल यादव जो आज सी वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे, राम मंदिर बेकार है, उदित राज बुलडोजर चला दो मंदिर पे, प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना होता है राहुल गांधी, राम जी डज नॉट एग्जिस्ट कांग्रेस पार्टी, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड, मठाधीश माफिया होता है, सनातन डेंगू, सनातन समाप्त। ये सारे बयान जो है ये तो मोहब्बत की दुकान से निकला हुआ सामान है ना भाई साहब। तो आप क्या कह रहे हैं, सनातन को अटैक किया जा रहा है? दो है, एक तो संविधान को अपमान करना और सनातन को अटैक करना, और इसीलिए ये दोनों चीजें इनकी पहचान है। मैं पहले संजय झा से कैटेगोरिकल जानना चाहता हूं, वन लाइन इज सीजेआई वर्कर ऑफ बीजेपी, समाजवादी मस्ट ऑफिशियली आंसर, संजय झा मस्ट आंसर। संजय झा प्लीज रिस्पॉन्ड। Yeah, Swati, here is the point. You know, I have always appreciated what Mr. Chandrachud has explicitly articulated many times, that the judiciary, particularly at the lower levels of judiciary, has not conducted itself well. He's gone on record to say that many of the judgments that have been given appear to be extremely specious, and they have been eventually solved by the Supreme Court. Now, I'll tell you why this conversation is happening on your program today, and I think Mr. Chandrachud himself will be aware of that. There have been allegations on many judges over the last several years. Please don't forget, Swati, during the time of Mr. Modi as Prime Minister, we have had 4 judges, senior most judges of the collegium, who have sat and given a press conference where they have gone and said India's democracy is endangered and benches are getting fixed. This is something that everybody recognizes. I think Mr. Chandrachud today is probably a victim of all these political attacks, because the judiciary is no longer being seen as a sacred cow. No, but then don't forget, there is an example of a previous Chief Justice of the Supreme Court who immediately after he... But then Sanjay Jha, tell me something. Today when he talks about his religious belief, there's somebody on the panel who says he's a BJP worker. So, you know, going by that logic, the press conference that happened, who were those judges working for back then? Yeah. Are we going to divide the judiciary and look at the judiciary from that angle, that prism? Swati, I was trying to put this debate in a more mature and a dispassionate context. I have said it before and I'll repeat it again. Any criticism of Mr. Chandrachud on saying that I looked at God before I took these decisions is unfair, illogical and irrational. And he's answered your question. He's saying it's unfair and illogical. He's hardly done that. Let me explain why. Ranjan Gogoi, when he was part of the 4 judges who came out, that time Congress party celebrated him. Ranjan Gogoi, when he took a decision which was inconvenient to the Congress party said he's a bika hua judge. The Congress, 1 second, sir, I did not interrupt. Now follow your own rules, Sanjay. Follow your own rules. Don't suspend yourself in logic. Secondly, Congress preaching about judiciary is like Osama preaching about peace. You sent Baharul Islam to Lok Sabha, then to judiciary, then to Lok Sabha. You sent Rangnath Mishra to Lok Sabha, Raj Sabha, and you are preaching about judiciary. Sir, Sanjay Jha, is CJI a political BJP worker? Answer it categorically, yes or no. Don't say he opened himself for attack on this victim. Don't say all that. Take a position. Samajwadi should take a position. Swati, please do not allow this gentleman to hijack the program. 1 second. Sanjay Jha has just said whatever this criticism is, you've called it unfair. I'll answer your question, and I have said it again. I don't, you know, I would request any panelist here, don't get bulldozed by the BJP. They make you answer yes, no. No, 1 second. Sanjay Jha has already called it illogical. He's called it illogical. So why are they in alliance with an illogical man? Okay, 1 second. Now let me bring in Vivek Silas. Vivek Silas, what does the Samajwadi Party think about Mr. Ram Gopal Yadav's statement? And then after all of a sudden, he realized that, arey, CJI to is a Mahan Admi? No, I think what Mr. Ram Gopal Yadav said, he said that the Chief Justice of India is a competent, justified and a dignified person. He said that. We just heard that. Before that, we've heard both versions. And then, I would we've heard both versions, sir. People who do their work honestly don't care about their legacy. That is what I say. Because CJI Justice Chandrachud Singh has to leave a legacy behind. People will remember him as a good or a bad CJI. But we are not talking about his legacy. We're not talking about. We are talking about what the netas are saying. Do you think he really cares about the opinions at the moment?
No, I think what our national president said, you should have heard that. He said that we respect the Chief Justice of India from But the we've core of our also heart. heard Mr. Yadav. So what we want to know is what action will your party take? I think If your party chief says that he really respects the Chief Justice of India, is he going to take any action against Mr. Yadav and set an example? No, Ram Gopal ji, what he said he never commented on the Chief Justice of India. The comment was something Both else. the versions are on camera, sir. And the Both media versions are misinterpreted it. Okay. The media is misinterpreting And everything. Finally, what he said, he's a competent and a justified Later, man. sir, that U-turn also everybody saw. That is also on camera. But I want to bring in Harshvardhan Tripathi. Harshvardhan Tripathi जी मखौल बना करके रख दिया है पूरे जुडिशरी का, जिसके मन में जो आता है वो बोलना शुरू कर देता है. क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने घर में गणपति पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? उसमें भी एक टाइमिंग का मुद्दा आ जाता है कि अरे महाराष्ट्र के इलेक्शन आने वाले, इसलिए देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंच गए. प्रधानमंत्री के पास और भी जरिए हैं ना महाराष्ट्र जीतने के, कैंपेन करने के, स्कीम्स लॉन्च करें, पॉलिसीज बदले, लेकिन उनको सीजेआई के घर जाके ही वोट मिलेगा. दूसरा, अगर सीजेआई कहते हैं कि मैंने भगवान के सामने ये कहा कि आप मुझे रास्ता दिखाइए, तो सेना के लोग, यूबीटी के लोग कहते हैं कि अरे क्या उस वक्त आप किसी और से ऑर्डर ले रहे थे? ये किस तरह की बयानबाजी है? स्वाति जी, मुझे लगता है कि इस देश में एक विचित्र किस्म का तंत्र काम करता है, जिसके ऊपर न तो अदालत की अवमानना काम करती है, जो कुछ भी बोलकर किसी भी संस्था के बारे में कुछ भी कहकर निकल जाता है. और वो हमने देखा भी, जब प्रशांत भूषण ने सर्वोच्च न्यायालय को 1 रुपया दिखा दिया और एक तरह से अवमानना पर अवमानना कर दिया और कुछ नहीं हुआ. देश भर में कई बार काउंसिल उनके साथ आ गई. तो एक विचित्र किस्म का तंत्र है जो मूव करता है. राम गोपाल यादव जी सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सबसे सोबर चेहरे कहे जाते हैं, और उन्होंने जो कहा, किसी टेलीविजन चैनल में इतना साहस नहीं है. क्यों साहस नहीं? कोई डर वाला साहस नहीं, शर्म की वजह से. इतना साहस नहीं कि उसको बता भी सकें. हम में से कोई टीवी पर नहीं बोल सकता है जो उन्होंने कहा, और जिस अंदाज में कहा उसको जरा समझिए. दरअसल ये जो राम मंदिर बन गया, ये इस देश के फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव चलाने वालों के सारे, जिसको कहते हैं ना कि अगर हम आज के शब्दों में कहें तो बुलडोज हो गया, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया उनका पूरा नैरेटिव. राम मंदिर का बनना उनकी पूरी राजनीति को लगता है कि तो खत्म सा हो गया. अब चूंकि 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल गई, तो वो नए सिरे से इसको स्थापित करने की कोशिश करेंगे. राम मंदिर को इररिलेवेंट, अप्रासंगिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं. और ऐसे में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि हमें उस वक्त उलझन थी, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस खंडपीठ के उस बेंच के एक जज थे जी, वो न तो उस वक्त सीजीआई थे और उनसे सीनियर जजेस थे वहां. इसके बावजूद जब इस तरह की टिप्पणी आती है, तो असली मुश्किल वही है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बात और कही कि हमारा काम विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं है. ये विपक्ष ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूरे सुप्रीम कोर्ट को सरकार के खिलाफ के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करें, और वो भी तब जब ढेर सारे ऐसे डिसीजन हुए जो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ हुए. लेकिन इस तरफ से किसी ने वो नहीं कहा, लेकिन उधर से किशोर तो आपका भी आकलन यही है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की ये सनातन पर निशाना है, डीवाई चंद्रचूड़ पर नहीं, सीजेआई पर नहीं? 100% राम मंदिर पर निशाना है ये. इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जो ये है, ये इसीलिए है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका एक पार्ट थे, उस डिसीजन मेकिंग का एक पार्ट जी. तो सीधा सीधा ये, और मेरा ये मानना है कि ये तो कंटेम्प्ट का मसला. एक बात और जिस पर मैं चाहती हूं कि लोग फोकस करें, क्योंकि ये सीजेआई की आस्था की बात हो रही है, और कोई ये कह रहा है कि ही इज ब्लाइंडेड बाय हिज फेथ, और उसको जोड़ करके देखा जा रहा है महाराष्ट्र इलेक्शन से, उसको जोड़ करके देखा जा रहा है राम मंदिर वर्डिक्ट से. स्मिता, आई वांट योर कमेंट ऑन दैट, बिकॉज दिस इज द सेम पर्सन हु वाज आल्सो पार्ट ऑफ द बेंच इन द सबरीमला केस. ऑफ कोर्स that went to a larger bench, but his stand did not change. D.Y. Chandrachud said, I'm just reading one of the excerpts, he said, a claim for the exclusion of women for religious worship, even if be founded in religious text, is subordinate to the constitutional values of liberty, dignity and equality. Exclusionary practices are contrary to constitutional morality. Was he being deceptive and a hypocrite when he said that? Well,
All I can say on this is that, courts and judiciary, they are not immune from criticism. But when you question them and when you ascribe motives to them, like whether in the Sabri case or when in this case, it has to be based on facts and not distorted facts or distorted interpretation of those facts. So and that also when a judgment goes against you, then you say that every subsequent judgment made by that judge is colored or is wrong. That also is misinterpretation and wrongful characterization of somebody's delivery of justice. Now, is praying or mentioning faith judicial misconduct? I don't think so. And there was no ethical misconduct either in what he said, because judges have a responsibility to preserve the integrity of the judiciary. Doesn't mean that they don't talk about personal matters. Of course they will, but judges also have the responsibility to avoid even the appearance of impropriety. And for some people, talking about religion continues to be a matter bordering on impropriety, and that's why all this happened. But what did he say? Did he say, I think the exact words he said was, if you have faith, God will show you the way. Yes. Did he say that there was some divine intervention because of which I made a particular judgment? He didn't say any of that. So some people believe that prayers clear up one's mind. Some people believe that going on a vacation clears up mind, going to a bar clears up the mind. This man said that, I prayed and that's all he said, that sometimes while praying it shows the way. I don't think Justice Chandrachud's term or his term in office should be criticized because of a comment here or there. He'll be remembered for a whole host of things which he has done, which is introduction of technology in courts, e-filing, live streaming of proceedings. These are important. So, I think the bigger issue we should all keep in mind is that legal logjams should be cleared. We have over 5 crore cases which are pending in courts. That should be done, and all lawmakers. But what is your assessment of why is the opposition latching onto this opportunity? Here or there that a judge or one statement by the CJI on his religious belief, and the entire opposition pounces and says, I think it's election season. Okay. It's a short comment. Can I just make one? No, let her complete. It's election season and everything, and his term is coming to an end. That's why it's election season. His term is coming to an end. So it is like he's hot potato. So they would not like him to have any kind of a post probably, which might be granted, might not be granted to him. But it's just to sully his reputation, I guess, or just an off-the-cuff remark made by a politician. Your assessment is that this is to sully his reputation. Okay. किशोर तिवारी जी, आप क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं जब स्मिता प्रकाश बात कर रही थी? क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं? Probably. नहीं, देखो स्मिता प्रकाश जी, मैं अभी सिडनी में था, उसके बाद अबू धाबी था. आपका प्रोडकास्ट इंटरनेशनली बहुत फेमस हो रहा है. कीप इट अप. लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ कि उद्धव जी को भेजो ना जल्दी से उधर. उद्धव जी का पॉडकास्ट करा लो. किशोर तिवारी जी प्लीज. अरे भाई, ये बीच में क्यों बोला? नहीं, सीरियस डिबेट में आप ध्यान भटकाने की कोशिश मत कीजिए. देखिए, क्या ये सीजीआई का रेपुटेशन खराब करने की कोशिश है? क्या ये कोशिश थी ऑपोजिशन की? देखो, मैं सीरियस बात करता हूँ कि सीजीआई पोस्ट को डिग्रेड किया था गोगोई ने, लेकिन ये रिसेंट एक्शन है जो डीजे कैसे डिग्रेड किया उन्होंने? अरे वो बीजेपी के फिर सांसद बन गए, और मैं अभी बता रहा हूँ. तो इतिहास में इससे पहले कभी कोई फॉर्मर जज, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी ने ज्वाइन नहीं किया? भाई, और उस लिस्ट में कांग्रेस पार्टी का नाम कहीं नहीं है, ऑपोजिशन की पार्टियों का नाम उस लिस्ट में कहीं नहीं है. एक महीने में जितने डिसीजन थे वो दे दिए. अब मुझे लगता है कि चंद्रचूड़ साहब ने ये जो नया अवतार लिया है, तो डिसीजन नहीं दे देना. तो नया अवतार ले लिया का क्या मतलब है आपका? चंद्रचूड़ जी ने ऐसा क्या कर लिया कि नया अवतार उनका हो गया? अपने घर पे गणेश पूजा कर ली तो नया अवतार हो गया क्या? या ये कह दिया कि मैं भगवान से रास्ता पूछ रहा था, मैं ये चाह रहा था कि गॉड शुड गाइड मी एंड शो मी द पाथ, ये नया अवतार हो गया? क्या बातें आप कर रहे हैं? अरे मैं देखो स्वाति, मैं तुमको देखो डांट के बोलोगे तो मैं चुप रह जाऊंगा, ऐसा नहीं है. अरे मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर, आपका कमेंट में डांट नहीं रही हूँ, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि आपका कमेंट क्या है. कभी आप कहते हैं नया अवतार ले लिया, कभी आप कहते हैं बीजेपी का वर्कर है. देखो, इसके पहले कोई सीजीआई
के घर को टोपी पहन के प्राइम मिनिस्टर जबरन जाके अरे सर, इफ्तार पार्टी में जो सीजीआई चले जाते हैं तो आप उनके भी फेथ पर सवाल उठाते हैं क्या? एक मिनट मेरी बात समझो, वो पब्लिक फंक्शन था, ये तो घर की आरती में घुस गए। एक मिनट, घुस गए का क्या मतलब होता है? घुस गए मतलब क्या? अरे उन्होंने बताया कि मैंने बुलाया नहीं था, ये किसने बताया? में जबरदस्त किया। एक मिनट, अरे सीजीआई ने बताया। अच्छा, से फोन आ रहे थे, सीजीआई ने। मिस्टर तिवारी प्लीज, आई मीन कहां से आप ये लेकर के आ रहे हैं? कहां छपा? कोई प्राइवेट पब्लिकेशन है जो आप ही के लिए छपता है क्या सर? जहां पर ये लिखा गया कि सीजीआई के घर में जबरदस्ती प्रधानमंत्री घुस गए। स्वाति मैं क्लियर कर रहा हूँ, पीएमओ से बार बार चीफ जस्टिस के ऑफिस को फोन गया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर आपके घर आरती को आना चाहते। अच्छा, तो उन्होंने फैमिली को पूछा, तो उनकी फैमिली बोली कि वो मनोहर कहानियों का एपिसोड नहीं चल रहा है, प्लीज। अरे ये मनोहर कहानियां नहीं चल रही यहाँ पर, जबरदस्ती मनोहर कहानियां नहीं चल रही हैं। फिर से मैं आपसे कह रही हूँ, मनोहर कहानियों का एपिसोड नहीं है, न्यूज आवर की डिबेट चल रही है। प्लीज कुछ नहीं तो डिबेट की गरिमा रखिए। शहजाद पूनावाला, देखिए आजकल जो है किशोर तिवारी हिजबुल्लाह के पेजर से ज्यादा खतरनाक बन चुके, कहीं पर भी कैसे भी एक्सप्लोड हो सकते हैं। किशोर जी, एक दो सवाल है। आपने गोगोई जी को बोला, आपने धनंजय चंद्रचूड़ जी को बोला जो महाराष्ट्रन भी है, पर आपको तब तो ठीक लगा जब बहारुल इस्लाम सांसद बन के फिर जज बना। ये कांग्रेस ने किया। बहारुल इस्लाम पर कुछ नहीं बोलना है। दूसरी बात, अभी मेरे भाई विवेक साइलस ने बोला कि वो मिस इंटरप्रेट हुआ कमेंट राम गोपाल यादव जी का, मतलब कि वो उदित राज के विषय में बोल रहे थे, सीजीआई के विषय में, एक दलित व्यक्ति को बोल रहे। छोड़ दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पे क्लियर कट ये बोल रहे कि बीजेपी के कार्यकर्ता है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसमें तो स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन ही है। क्या सीजीआई बीजेपी के कार्यकर्ता? अगर नहीं है तो किशोर तिवारी और उद्धव सेना से रिश्ता तोड़िए। संविधान तो रक्षा करते ना आप, संविधान। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे वर्डिक्ट्स मैं आपको बता दूं और बोलूं, भारतीय जनता पार्टी अपना जो गठबंधन है उसको तोड़ दे। यू एग्री विद? नहीं, आप मुझे बताइए। ठीक, संविधान ये संविधान लेकर सब चंद्रबाबू नायडू ने मोदी जी को टेररिस्ट कहा कि वो आतंकवादी हैं। आपने तोड़ा क्या? अच्छा, मैं तोड़ देते हैं। क्यों नहीं तोड़ा भाई? मोदी जी आज भी आप उनके सपोर्ट से चल रहे हैं। पूरा करने दीजिए विवेक जी। आज भी मैं बोल रहा हूं कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट अखिलेश यादव जी ने बोला कि वो कॉम्पिटेंट, जस्टिफाइड है और डिग्निफाइड है, और हम सीजीआई की मतलब पूरी तहे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। मेरा किशोर तिवारी का कमेंट रिस्पेक्टफुल था क्या? बीजेपी वर्कर है सीजीआई, इज दैट रिस्पेक्टफुल? वो शिवसेना, अरे आपका साथी है, शिवसेना फाइटिंग इलेक्शन विद देम इन महाराष्ट्र। आई नो, एक मराठी मानुस के विषय में बोला गया है, मराठी मानुस के विषय में। बहारुल इस्लाम पर कुछ नहीं बोलना है, गोगोई होमिया को टारगेट करना है, होमिया को टारगेट करेंगे, चीफ जस्टिस की महाराष्ट्र के प्राइड को टारगेट किया जाएगा। का नहीं होता है। अच्छा, वो देश के चीफ जस्टिस हैं, वो कोई मराठी मानुस तो बीजेपी वर्कर बोलना ठीक है? नहीं, बीजेपी वर्कर बोलना गलत है। क्या डबल स्टैंडर्ड? कितनी बोरी डबल स्टैंडर्ड लेकर आए हैं? कितना बोरा लेकर आए? किसी भी जज को बोरा तो अडानी और अंबानी पहुंचा। अडानी ने 100 करोड़ अभी तेलंगाना को दिए। अडानी ने 100 करोड़ तेलंगाना को दिए। बोला मोदी जी ने बोरा भर के अडानी अंबानी पहुंचा। क्या ये अपने चक्रव्यूह में ऑपोजिशन फंसती आपको दिखाई दे रही है? जो गणपति पूजा से शुरू हुआ था वो यहाँ इस स्टेज पर पहुंच गया है जब सीजीआई की इंटेग्रिटी पर ही सवाल उठाने लगे हैं लोग। ये तो पुजारी बनने को जा रहे हैं भाई थोड़े दिनों में। क्या किशोर जी कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, मैं बोला था त्रिपाठी जी पुजारी बन जाएंगे राम मंदिर के। नहीं, देखिए उसके लिए बहुत यत्न करना पड़ता है। आप भी उधर से भाग इसीलिए आए ये वाले काम में क्योंकि इसमें थोड़ा कम मेहनत लगती है। पुजारी बनने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो अच्छा होगा हम में आप में से कोई अगर ये कर पाए तो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन मूल जो बात है, क्या देश के मुख्य न्यायाधीश पर इस तरह की टिप्पणी एक तरह की फांसीवादी प्रवृत्ति को नहीं दिखाता है? मुझे लगता है इस पर थोड़ी बात होनी चाहिए। एक ऐसा वर्ग जो तैयार होता है वो कहता है कि इस खांचे में सोचो, इससे इतर अगर सोचोगे तो फिर वो ठीक नहीं है। और उसके लिए वो कहां तक जाते हैं? इस देश के संविधान पर हमला करते हैं, इस देश के लोकतंत्र पर हमला करते हैं, इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस पर हमला करते हैं।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इनके मतलब क्या कहेंगे, इतने फेवरेट तो कभी कोई हुआ ही नहीं, और आज वो अचानक जाते जाते जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, जब उनको लग रहा है कि बहुत कुछ इनके ऊपर दबाव बना के हासिल नहीं किया जा सकता है, तो उनकी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी इमेज पर ये जो कोशिश है, ये मैं साफ साफ कहता हूं कि ये फांसीवादी लोग हैं जो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। इस पर बात होनी चाहिए। नहीं त्रिपाठी जी, अगर वो हमारा जो महाराष्ट्र का जो असंवैधानिक सरकार है, हाँ, उसको और शिवसेना के सिंबल को लौटा देते तो हम ऐसा नहीं बोलते ना। अच्छा, हाँ, मतलब आप तो और साबित किए जा रहे हैं अपनी बात को, आप तो और साबित किए जा रहे हैं इस बात को कि अगर आपके फेवर में जजमेंट होता तो आप क्रिटिसाइज नहीं करते, आपके फेवर में नहीं है तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप तो इस पर स्टैंप लगा रहे हैं, मुहर आप लगाए जा रहे हैं। संजय झा वांट्स टू कम। ये इलेक्शन कमीशन का काम, सिंबल अलॉट करना सिंबल ठीक है कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। किशोर जी इतने सीनियर लीडर है, वो ये भी नहीं जानते हैं, कमाल कर रहे हैं। Mr. Tripathi, can you give me 15 seconds? Go ahead. So, Swati, here are 2 points. Number one, I think if Mr. Chandrachud is watching this program, he will not be surprised, only because the cynicism against India's institutions has been at a very high level. And it's largely, I would say, a result of the kind of sinecures that a lot of retired judges and bureaucrats have taken, at different levels of politics. You will remember, Swati, about this famous judge from the Kolkata High Court who retired and next day was a campaigner for the BJP and a candidate, if I'm not mistaken. So I think the bottom line is that today there is a lot of public disaffection. People don't trust anybody anymore. There's a massive trust deficit across the country. Forget politics, with institutions, even with the judiciary, unfortunately. So that's a reality of our times. Okay. And I think that's what is the result of this kind of no I would need some fact check and counter on that, some fact check and counter on that. Can I just one line? Okay, one line. Who's Justice Abhay Thipse? Justice Abhay Thipse भूल गए? संजय झा, आपके तो मुंबई महाराष्ट्र से है ना, और बहारुल इस्लाम पर कुछ नहीं, रंगनाथ मिश्रा पर कुछ नहीं, कुछ नहीं बोलना. You are saying this for Abhay Thipse? He joined the party and Rahul Gandhi welcomed him. Was his judgment suspect? This is the double standards of Sanjay Jha. Look at this man. He is the poster boy of double standards and hypocrisy. Just because he dresses up like Mr. Steve Jobs does not mean he's not a hypocrite. Okay. No personal remarks. No personal remarks. No personal remarks on anybody. हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या 2014 के बाद से ही जजेस को, जजमेंट्स को, जुडिशरी को क्रिटिसाइज किया जाने लगा है, या 2014 से पहले भी क्रिटिसिज्म हुआ है, या सब पहले खुश थे जुडिशरी से, सारे जजमेंट से, सारे जजेस से, और अचानक से एक ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हो गया? नहीं, देखिए, ये इकोसिस्टम जब थोड़ा सा टूटा है ना, तो इसका ये परिणाम है। इसको यूं देखना चाहिए, राजनीति में तो सत्ता बदलती रही, पहले भी कई बार बदली है, लेकिन कभी भी हमने विपक्ष को इस तरह से जुडिशरी पर हमला करते नहीं देखा। सत्ता करती थी, कांग्रेस के लोग, जब इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला आया तो कांग्रेस के लोग उसके खिलाफ गए, लेकिन ऐसे विपक्ष इस तरह से जुडिशरी पर हमलावर हो, इस तरह से उनके खिलाफ बात करे, ये 2014 से पहले देखने को नहीं मिलता। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि ओवरऑल इकोसिस्टम में थोड़ा सा कुछ तो दरार आई है, कुछ थोड़े क्रैक्स दिखने लगे हैं। अब कि वो दिखने लगे हैं, वो मुश्किलें आने लगी, तो उनको लग रहा है कि ये दबाव बनाने का टाइम है, और वो जुडिशरी पर दबाव बना रहे हैं, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट पर, जिससे कि बड़े फैसलों में उनके पक्ष में बातें हो। मुझे लगता है कि ये ज्यादा खतरनाक है, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, और जिसको हम बार बार कहते हैं कि फ्री एंड फेयर जजमेंट, वो कितना हो पाएगा, और इसकी बात बार बार सुप्रीम कोर्ट, आप कह रहे हैं क्रिटिसिज्म पहले भी होता था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि ऑपोजिशन इतना हमलावर जुडिशरी पर हो रहा है। ओके, आई हैव टू रैप अप, बट वेरी क्विकली स्मिता, आई बिलीव यू वांट टू मेक अ पॉइंट, प्लीज वेरी क्विकली। Yeah, this thing about cynicism against the judiciary. I'm sorry, but where is the cynicism when Justice Hasnain Masoodi gave Article 370 a permanent verdict? He said, then he joins the NC. Which Shehzad pointed out, Abhay Thipse, he gives a verdict against Amit Shah, joins the Congress. What happens when Baharul Islam, he is a judge for a decade and then joins the Congress? He
was in the Congress, gives this. He does. So, the cynicism is just that there is television now and you can vent it on television. Earlier there wasn't. That's all. And fingers now being pointed at the CGI for expressing. The next justice is Sanjeev Khanna, who comes from HR Khanna's family, who they superseded. Sanjay Jha is the poster boy of hypocrisy. All right. So the opposition is now questioning the CGI, openly talking about his religious beliefs. Like Mr. Tripathi said, ऐसा नहीं है कि पहले criticism नहीं होता था. Now the opposition has started questioning the integrity of the judges. Thank you very much for joining us on debate number 1. Shehzad Poonawalla, Sanjay Jha will continue to be with us for debate number 2 as well.